ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਮਾਣਿਕਮਾਲਾ ਭਾਗ 2 ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਕੰਮ ਅਤੇ ਭਗਤੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾਊ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਅਤੇ ਭਗਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵੇਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕੋਲ ਦੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਰੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਆਏ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। मतलब हमें शिक्षा दो। उन दोनों श्रद्धालुओं ने उनके आगे बेनती की। साधु ने दोनों श्रद्धालुओं ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ मतलब उन्हें भेज दिया। कुछ ਸਮਾਂ बीतने के बाद, ਪਿੱਛੋਂ मतलब बाद, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਸ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਫੇਰ ਆਏ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਗਤਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂਦੇਵ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧਿਆਨ ਚਿੱਤ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਚਿੱਤ ਬਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰਤਾ ਹੂੰ। ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਗਤਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਝਿਜਕਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਵੇਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪਲ ਆਰਾਮ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੀਲੀ ਛਤਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਛੱਡੀਦਾ। ਨੀਲੀ ਛਤਰੀ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਧੂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਮਤਲਬ ਉਨਕੀ ਤਰਫ ਦੇਖਾ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸਨੇ ਹਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਹਥੇਲੀ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਓ, ਪਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਟੋਰੀ 'ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਾ ਡੁੱਲੇ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਧੂ ਅੱਗੇ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਤਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਲਿਆ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿਤਨੇ ਟਾइम तुमने भगवान को याद किया? ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਟੋਰੀ 'ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਡੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਟੋਰੀ ਵੱਲ ਹੀ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ मैं भूल ही गया। मतलब उसने कटोरी को जब वो पहाड़ी का चक्कर काट रहा था तो उसका पूरा ध्यान उसी पे लगा रहा कि दूध ना गिर जाए, तो उसने भगवान को याद ही नहीं किया। अब यहाँ पे हम आपके साथ क्या होता है बच्चों, क्योंकि आप क्या करते हो कि गलती ना, आपसे जब भी टीचर क्लास में कुछ पूछती है तो कोई बच्चा प्रश्न का जवाब नहीं देता। क्या बोलता है कि हमसे गलती ना हो जाए, दूसरे बच्चे क्या कहेंगे, तो यहाँ पे वो क्या गलती कर रहा है, वो सीख नहीं पाता। जैसे इस साधु ने, इस श्रद्धालु ने भगवान का नाम नहीं लिया, उस डर में, उस भय में रहा। ऐसा ही हमारे साथ होता है। आगे देखो, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਧੂ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ, ਬਸ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੰਮ ਬਿਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ, ਸਭ ਜੱਗ ਰੱਬ ਦੇ ਧੰਦੜੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, तदे तो सारा संसार गतिशील है। यहाँ पे कि काम ही भक्ति है। यहाँ पे जो इसका नाम था इस पाठ का, वो यहाँ पे देखने को मिलता है कि अगर काम नहीं तब काम बिना बंदा किस काम दा। तो जो काम के बिना इंसान किसी काम के नहीं होते। हम तभी अच्छे लगते हैं हम जब तक हम कर्म करते रहते हैं। सब जग रब ने धंधड़े लाया होया, कि पूरी दुनिया को धंधड़े मतलब धंधे, काम धंधे, जैसे धंधा बोलते हैं कि धंधे लाया हुआ है। तदे तो सारा संसार गतिशील है। तदे मतलब इसीलिए तो पूरा संसार गतिशील है, गति करता रहता है।
ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਅਸਲ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਵਿਰਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੱਜੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਹੈ। साधु दी सियाणप समझ श्रद्धालु उसके चरनी ढह पिया। जब उसे समझ में आया तो तब वो श्रद्धालु साधु के चरणों के में ढह पिया, मतलब चरना ते डिग पिया, मतलब गिर गया। उसे शिक्षा मिल गई कि शिक्षा क्या होती है, भक्ति क्या होती है, समझ में आ गया। हुण असीं इसदे औखे शब्दां दे अर्थ करते हैं। औखे शब्दां दे अर्थ शब्द जो कठिन शब्द होते हैं, औखे बोला जाता है कठिन को। अमल व्यवहार विच लाना, अमल किसी चीज़ को का अमल करना। हमें कोई शिक्षा दे तो उसे हम अपने व्यवहार में लाएं। धंधड़े काम धंधा, सृष्टि संसार जगत, नीली छतरी वाला परमात्मा, गतिशील हरकत विच होना, चरनी ढह पिया पैरां ते डिगना। हुण इस दे प्रश्नां दे उत्तर हेठ लिखे प्रश्नां दे उत्तर एक वाक विच दिओ। पहला है साधु कोल किन्ने श्रद्धालु आए, तो साधु कोल 2 श्रद्धालु आए। माला फेरन नाल ही भगती हो सकती है, किसने कहा, तो ये किसने कहा सी, हरि राम ने। ये क्या सी, हरि राम ने। फिर अगला प्रश्न है साधु दे चरनी कौन पिया, तो साधु दे चरनी कौन पिया सी, साधु दे चरनी भी हरि राम पिया सी। खाली थावां भरो। अगे देखो, साधु ने श्रद्धालुआं नूं डैश दे के तोड़ दिता, तो साधु ने श्रद्धालुआं नूं की दे के तोड़ दिता, सिक्ख्या। अगला प्रश्न है ओ डैश पहाड़ी दा चक्कर कट के साधु अगे हाजिर होया। ओ शिवालिक पहाड़ी दा चक्कर कट के, ओ शिवालिक पहाड़ी दा चक्कर कट के साधु अगे हाजिर होया। अगे डैश मैं ता डैश वाल ही तकदा रहा, मैं ता कटोरी वाल ही तकदा रहा। इस तरह लिख देंगे कटोरी। फिर अगे देखो, हेठ लिखे प्रश्नों के उत्तर संखेप विच दिओ। संखेप विच यानी कि एक लाइन विच, 1-2 लाइनां विच तुसीं इन्हां दे उत्तर देने हन। पहले श्रद्धालु ने साधु नूं सिक्ख्या उत्ते अमल करन बारे की जवाब दिता, तो पहले श्रद्धालु ने की जवाब दिता सी कि माला, मैं तो रब दा नाम लैना हाँ, मैं माला फेरदा हाँ, माला फेरन नाल ही भगती हो सकती है। ये कहा सी हरि राम ने। प्रेमचंद ने साधु नूं सिक्ख्या उत्ते अमल करन बारे की जवाब दिता, तो प्रेमचंद ने कहा सी कि मैनू तो रब दा नाम लैन दा टाइम ही नहीं मिलता, मैं तो सारा दिन खेतां विच काम करदा रहना है, काम ही भगती है। तो साधु ने हरि राम नूं की करन लई कहा, तो साधु ने हरि राम नूं पहाड़ी दा दुध दी कटोरी लैके पहाड़ी दा चक्कर कट्टन लई कहा। पहाड़ी दा चक्कर कट के वापस आउण ते हरि राम ने साधु नूं की जवाब दिता, तो हरि राम ने साधु नूं जवाब दिता कि रब नूं याद करना तो मेरे चेते ही नहीं रहा, मैं तो इसे गल तो डरदा रहा कि कदे दुध थल्ले ना डुल जावे। अगे देखो, हेठ लिखे प्रश्नों के उत्तर विस्तार सहित दो। ये असीं 2-3 लाइनां विच इन्हां दे उत्तर देने हन। पहाड़ी दा चक्कर कट के आउण तो बाद साधु ने पहले श्रद्धालु नूं की समझाया, तो पहाड़ी दा चक्कर कट्टण तो बाद पहले श्रद्धालु नूं साधु ने समझाया कि काम ही असल भगती है। सारी सृष्टि विचले जीव जंतु पशु पंछी अते रुख विरछ नियमां च वज्जे ही चल रहे हैं। हर कोई अपना अपना करतब निभा रहा है, भाव अपना अपना काम कर रहा है। हरि राम नूं की समझ आया, हरि राम नूं समझ आया कि काम ही असल भगती है। अगे देखो, असल विच किस श्रद्धालु ने साधु की सिक्ख्या उत्ते अमल किया सी ते किवें। असल विच प्रेमचंद श्रद्धालु ने साधु की सिक्ख्या उत्ते अमल किया सी। क्योंकि वो मानदा सी काम ही भगती है अते वो काम करदा करदा ही परमात्मा का नाम लैंदा सी। अगे देखो, हेठ लिखे शब्दां नूं गुरुमुखी विच लिखो। तो श्रद्धालु इस नूं तुसीं पाठ विचों लभ के गुरुमुखी यानी कि पंजाबी विच लिखना है। तो श्रद्धालु नूं किवें लिखांगे पंजाबी विच, श्रद्धालु। ये देखो, इस नूं तुसीं पाठ विचों लभ के लिखना है। भगत, भगत इसको हिंदी में बोलते हैं भगत, तो पंजाबी च बोलिया जाता है भगत। फिर अगे ध्यान, तो ध्यान असीं लिखांगे
फिर है शर्मिंदा, तो शर्मिंदा ऊपर टिप्पी आएगी। फिर लिखना चिंता, तो चिंता टिप्पी। फिर अगे है सृष्टि, तो सृष्टि लिखने वास्ते सृष्टि। फिर नियम, नियम लिखांगे असी नियम। इसनूं ई दी मात्रा ए भी इस तरह भी लिखा जा सकता है, नियम। इस तरीके नाल इन्हां नूं तुसीं करना है। इसके प्रश्न उत्तर भी करने हैं। पहला इस कहानी नूं पढ़ना है, फिर इसके प्रश्न उत्तर करने हैं। मैं लिख के भी इन्हां प्रश्नां नूं तुहाडे नाल शेयर करांगी अते तुसीं इन्हां नूं चंगी तरह करना है। धन्नवाद।